नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज बहुत ही खूबसूरत विज़डम। आज का जो दिन है महाशिवरात्रि का, यानी कि 8 मार्च 2024 और दिन है शुक्रवार का। तो बहुत ही सुंदर सा दिन है ये, और बाबा ने इतने अच्छे मतलब मैसेजेस हमारे लिए भेजे थे, अगर आपने देखा हो जो मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें। और आज का जो मैसेज है ना, वो भी बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेज भेजा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आज का जो मैसेज है वो क्या है। ठीक है, तो आज का जो विजडम मैसेज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो पावन पावन महाशिवरात्रि के अवसर पे है। ट्रांसेंडेंस। ठीक है, तो बाबा का जो आज का मैसेज है वो मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, अब देखिए, बाबा's power transcends distance and boundaries, he is always there for you। तो ये आज का मैसेज है। और देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जब बाबा अगर बोले हमसे कि बेटा जो मेरे ट्रांसेंडेंस का मतलब है कि मैं हर जगह जा सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी रुकावट कहीं भी नहीं है, कोई बाउंड्री कहीं भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। तो इससे अच्छा कौन सा मैसेज हो सकता है आज के दिन। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की छोटी सी कहानी। The Tarkhats lived in Bandra. They had installed in their home a framed portrait of Baba. Every day the son worshipped the portrait after the morning bath. Baba Sahib, his father, did not believe in ritualistic worship, but the son did. He commenced his daily activities only after performing puja and offering naivedya consisting of sugar. He was very particular about following this ritual every day and did not eat a morsel of food until Baba had been offered food in the form of Naivedya. One day, Baba Sahib's wife expressed a desire to visit Shirdi and meet Baba. She requested her son to accompany her. The son was ever ready to go to Shirdi, but he was concerned about the daily puja and Naivedya ritual. Would his father follow it in his absence? Baba Sahib promised to make sure that Baba was offered Naivedya daily in his absence. After his son's departure, Baba Sahib kept his word and all was well. Then one day, inadvertently, the lapse occurred. Baba Sahib forgot to offer Naivedya to Baba. On returning home, he realized his mistake. He felt guilty and remorseful. His son had relied on him to perform this daily ritual and he let him down. Now he prostrated himself before the portrait and begged forgiveness. In his misery, he wrote a letter to his son in Shirdi, telling him about his folly and asking him to beg Baba's forgiveness on his behalf. Now, amazingly, with this chain of events was unfolding in a Mumbai suburb, there was something really astounding happening in Shirdi. On that same day, Mr. Tarkhat and his son went to Dwarka Mai for Baba's darshans. As they stood before him, Baba said, "Oh mother, today I went to your house in Bandra as usual, but there was nothing for me to eat or drink, and I had to return hungry." On hearing Baba's words, the boy's heart sank. He realized that something had gone wrong with the Naivedya ritual that day. Feeling very ashamed and unhappy, he asked for Baba's forgiveness. But Baba, the fount of compassion, gently said, "Today you may offer me the Naivedya here itself." Greatly cheered, the boy performed the ritual then and there. The same day he wrote a detailed letter to his father telling him about what had happened, what had transpired. Later, his father and son read each other's letters. They were absolutely stupefied. Baba knew what went on in Bandra when he was miles away in Shirdi. Baba's divine power truly transcended boundaries and distance. Although he appeared never to leave Shirdi, he was in fact everywhere at the same time. अब देखिए दोस्तों, अगर मैं हिंदी में थोड़ी सी कथा बताऊं आपको, तो तारखाट थे। तरखट जो फैमिली थी वो लोग रहते थे बांद्रा में, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा उन्होंने अपने घर में एक पोर्ट्रेट साईं बाबा का लगा रखा था। अब हर दिन क्या होता था कि जो उनका बेटा था वो जो उसकी उनकी फ़ोटो थी, जो उनका स्वरूप था, उस स्वरूप की रोज़ पूजा पाठ करता था अपने नहाने के, अपने स्नान करने के बाद। और बाबा साहेब जो थे, जो कि उनके
पिता थे वो इतना सब पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका बेटा करता था। तो रोज़ वो अपनी जितनी भी रोज़मर्रा के जो काम होते थे वो सब तभी पूरा करता था। एक तो पूजा करने के बाद दूसरा नैवेद्य जो था, एक कुछ भी मतलब प्रसाद वो अर्पण करता था बाबा को, जिसमें कि क्या होता था, वो प्रसाद मिश्री का बना होता था, मिश्री का भोग होता था। ठीक है। अब क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा इस जो उसका रोज़मर्रा का जो भी ये कार्यक्रम था जो उसका बाबा का, कि जितना भी ये रिचुअल था वो रोज़ करता था, और बिल्कुल भी एक रोटी का या एक टुकड़ा नहीं खाता था खाने का, जब तक कि बाबा को खाना ना मिले पहले नैवेद्य के रूप में। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबा साहेब की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि मुझे शिरडी जाना है और बाबा से मिलना है। तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि तुम मुझे ज़रा छोड़ कर आओ। अब बेटा तो बहुत ही भक्त था अपनी मम्मी की तरह, अपनी माँ की तरह, तो वो तो बिल्कुल तैयार हो गया शिरडी जाने का। लेकिन उसको बस ये चिंता थी कि क्या उसके पापा जो हैं, यानी उसके जो पिता हैं, वो रोज़ की पूजा और नैवेद्य अर्पण का जो एक जो रिचुअल है उनके घर में वो कर पाएंगे, क्या उसके जो फादर हैं वो उसको फॉलो कर पाएंगे उसकी एब्सेंस में। तो बाबा साहेब ने प्रॉमिस किया कि वो रोज़ वो जो करता है उनका बेटा, वो रोज़ करेंगे उसकी एब्सेंस में भी। तो जब उनका बेटा चला गया तो बाबा साहेब ने अपना जो वर्ड था, अपना जो प्रॉमिस था वो रखा और सब कुछ ठीक चला। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक गलती हो गई। बाबा साहेब जो थे वो नैवेद्य बाबा को अर्पण करना भूल गए, और जब वो वापस आए तो उनको उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बहुत ही बुरा लगा दोस्तों, बहुत ही उनको बुरा लगा कि देखो मेरा बेटा तो रोज़ ये सब जो रोज़ का जो कार्यक्रम है वो करता है और रोज़ अपना रिचुअल करता है, लेकिन आज जो मैंने रिचुअल नहीं किया है, तो इसलिए आज जो है मैं इस मतलब मैंने बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, एक जो उसका रोज़ का जो कार्य है ना वो उस पे मैंने बाधा लगा दी है। तो वो बड़े दुखी हुए और वो बाबा के जो स्वरूप था उसके आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए, बिल्कुल लेट गए और उन्होंने माफ़ी मांगी। अब क्या हुआ कि इसी बात में क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को शिरडी में एक चिट्ठी भी लिखी और उन्होंने बताया कि बेटा मुझसे भूल हो गई है और मैं बाबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जैसे ये सब गतिविधियाँ चल रही थी, तो वहाँ पे शिरडी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसी दिन जब तरखंड जो लेडी थी, जब वो द्वारका माई पर गई बाबा के दर्शन के लिए, और वहाँ पे जब वो सामने उनकी खड़ी हुई, तो बाबा ने कहा कि माँ, आज मैं तुम्हारे घर गया था बांद्रा में, लेकिन आज तो ना मुझे कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला, और मैं तो बिल्कुल ही भूखा प्यासा आ गया। तो ये एकदम सुनते से ही जो उनका लड़का था उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। उसको एकदम से पता लग गया कि वहाँ कुछ ना कुछ नैवेद्य का जो उसकी रोज़ का जो रिचुअल था उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। और वो इतना दुखी हो गया और इतना मतलब परेशान हो गया, और उसने बाबा से सीधे उसने माफ़ी मांगी। और बाबा ने तो कहा, देखो बाबा क्या है, वो तो बिल्कुल अंतर्यामी है, और बाबा ने उसको बहुत ही कोमलता से उसने कहा कि देखो आज तुम मुझे यहीं पर नैवेद्य अर्पण कर लो। अब वो बच्चा जो था वो इतना खुश हो गया कि अरे मैं तो शिरडी में ही बाबा को नैवेद्य अर्पण कर सकता हूँ। तो उसी दिन अपने पापा को उसने चिट्ठी लिखी और उसने बताया कि क्या हुआ था। और वहाँ पे यहाँ पे पिता ने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, वहाँ पे बेटे ने पिता को चिट्ठी लिखी। और बाबा को आप सोचिए, ये अंतर्यामी थे वो, कि उनको पता था कि शिरडी में क्या चल रहा है। तो बाबा का जो पावर है ना, यानी कि जो बाबा की जो ताकत है, बाबा की जो एनर्जी है, वो सारी बाउंड्रीज और जितना भी डिस्टेंस होता है उसको बिल्कुल वो चीर के रख देती है। मतलब उनके लिए कोई डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। और जैसे हमने पहले भी बताया था दोस्तों, बाबा का जो मैसेज आया था उसमें यही था कि तुम ये मत सोचो कि मैं सिर्फ मंदिर में या तुम्हारे घर में ही हूँ। तुम जहाँ जहाँ जाओगे ना मैं वहाँ वहाँ हूँ, मेरी उपस्थिति हर जगह है, चाहे तुम देश में रहो चाहे विदेश में रहो। तो इसलिए इस तरह से तो कभी मत घबराना कि इस जगह पे मैं नहीं हूँ या उस जगह पे मैं नहीं हूँ। तुम जंगल में जाओगे तो जंगल में भी मैं हूँ, बस तुम्हें मेरा नाम स्मरण करना है, मुझे याद रखना है। और हालांकि वो कभी शिरडी से कहीं गए नहीं, बाबा कहीं भी बाहर नहीं गए, लेकिन वो हर जगह पहुँचे होते थे। और यही अगर आपने साईं सच्चरित्र भी पढ़ी होगी मेरे दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें बाबा को ऐसा वर्णन किया गया है कि बाबा एक ही समय में बाबा कहीं भी ट्रैवल कर लेते थे, कहीं भी
जल्दी पहुंच जाते थे। तो यही है हमारे साईनाथ, हमारे भोले भंडारी, हमारे शिव शंकर की महिमा। और आज महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही सुंदर सा मैसेज बाबा ने हम सबके लिए भेजा है। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, और जो भी हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी के रोग हैं, कष्ट हैं, उन चिंताएं हैं, उनसे बाबा हमें मुक्ति दें, और बाबा हमें बिल्कुल सद्बुद्धि दें, हमारे विचारों को नवीनता दें, नयापन आए हमारी ज़िंदगियों में, हमारे सोच के तरीकों में, हमारे जो शरीर हैं बिल्कुल स्वस्थ रहें, हमारे मन बिल्कुल स्वस्थ रहें, हम बहुत ही हमारे कामकाज में बरकत आए, हमारे रिश्तों में सुधार हो, बहुत